Namaskaram everyone, this is Srinivas and welcome to the fresh episode of Bushlander. Today with me, Mr. Amish Shanbag, my dear friend. So, welcome to the fresh episode of Bushlanders. So, सर आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट की तरफ आपका कैसे झुकाव हुआ? So, first of all, Srinivas ji, thank you so much for having me on this particular podcast of Bushlanders, and I'm really excited to be here and to have this discussion for our viewers. And जैसे आपने अभी पूछा कि मैं फॉरेस्ट की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुआ, Yes. तो हुआ यूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने क्या बोलते हैं उसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड बोलो या घर में जो फ्लैट्स रहते हैं Yes. सिटी लाइफ में जिया हूँ एंड the maximum nature that I've experienced is in parks near my house, where I used to go for morning walks and then do some earthing, and I really felt that I was not connecting to nature. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जो साधना है उसमें कहीं ना कहीं कमी हो रही थी, Yes. तो वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था. लाइक इट इज़ लाइक इट इज़ देयर बट इट इज़ नॉट मर्जिंग. सो उस वजह से मेरे को अंदर से एक मेडिटेशन में जब मेरे को गाइडेंस आया देवी से कि आप चले जाओ तो श्रीनिवास से मिलो और नेचर के साथ कनेक्ट हो जाओ, तो इसीलिए मैं तुरंत आपको कांटेक्ट किया. Yes. और हम लोग मिल गए इस जंगल में आने के लिए. एंड मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, देवी का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये मौका मिला टू कनेक्ट विद दिस नेचर. तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फॉरेस्ट बेस्ड जो मेडिटेशन है या जिसे हम बोलते हैं वन विद्या? हाँ. तो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? तो एक्चुअली जब मैं यहाँ पे आया था मुझे इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था पहले को. ओके. तो दिस वाज माय फर्स्ट First time. एनकाउंटर, and I knew that since you are an expert in the bushlander and you have experience of the jungle, only thing that I knew that I could learn so many things from you, Yes. the way of the jungle, and I was not disappointed, frankly speaking. Yes. So the experience was such that the first day when we went into the jungle and we had the walk that we had and the things that we watched in the nature, and it was so raw, the raw energy, I could feel the raw energy coming towards me, and I felt that there was some kind of acceptance. Okay. And the first thing which I want to tell the audience is that when you go to a jungle, first get accepted in the jungle. Yes. So unless and until the jungle accepts you, please do not try to enter a jungle. And please, please, please carry somebody along with you who knows the jungle well. Do not try to do adventurous things by going there alone. Yes. And Srinivas ji has been an excellent support, and he has guided me in this last 4 days when I've been here in this jungle, and he has taught me the ways of the jungle. So the experience as such was that it was so fulfilling. I felt that I belong here. Yeah. And and the nature is like responding and speaking to me through these cold breezes. Yeah. And the trees like this are waving. Yeah. And you feel like you're connected, and this is what the reality is. We are all living in this concrete jungle, which is not the reality of life. This is reality. This is the reality, Yeah. Srinivas. तो सर हैव आपने मेडिटेशन भी किया, गाइडेड हाँ जी. मेडिटेशन. सो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस एंड द मेडिटेशन को जैसे हमने बनाया हाँ हाँ वो जो सिंक्रोनिसिटी है हाँ हाँ. उसके बारे में थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस हाँ. शेयर कीजिए. देखिए, मेरा मेडिटेशन जो है मैं गए 12-13 साल से कर रहा हूँ, Yes. और इसका जो स्टार्ट हुआ वो 2012 से हुआ. मेरा जो जर्नी है Yes. स्पिरिचुअलिटी में या आप बोलो मेडिटेशन में, या वो सर्च जो होता है अंतर अंतर आत्मा की सर्च जो होती है, अंतर्यज्ञ. हाँ अंतर्यज्ञ, तो 2012 से स्टार्ट हुआ था Yeah. जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था. ओके. एंड ही डाइड इन अ वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस. तो जब ही पास्ट अवे, आई हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद इन मी एज टू ये कहाँ चले गए, बिकॉज मेरे पिता की तरफ मेरा बहुत लगाव था. तो मैं ये सवाल अपने आप से पूछने लगा कि जब एक आदमी या एक इंसान मर जाता है वो कहाँ जाता है. तो that question ignited that fire in me, that I need to dig deeper. So I started doing a lot of research, and then one by one the universe itself started connecting me with the right people. And then जैसे आगे बढ़ता गया, मैंने I got introduced to the Reiki. Yes. Reiki energy, and then I started healing my body and also healing other people. Yeah. Then in that journey I went ahead, and then I got introduced to heartfulness from Hyderabad, and I started doing heartfulness meditation for 3 years, and that actually connected me with the inner self. Okay. So and that gave me, you can say, a shape Confidence. and confidence, and one route, a direction towards how I should meditate. Because before that it was all haphazardous. I was doing something on my own, I was chanting here and there, I was doing some funny stuff, but nothing was happening. Okay. So then slowly in 2022, by the grace of the gurus, I got introduced to a book called Autobiography of Yogi. Most of you must have heard about it. So it is a wonderful book, it's a magical book, and I recommend everybody to read that book. Yeah. So that is where, when on an Instagram feed I got the introduced to this particular book, and
something connected to that book, saying that this is the one which will take me to my next level. So I immediately ordered that book online, and I started reading that. And you will not believe that within 14 days, I in one shot completed that book, and immediately I registered for the Kriya. Kriya course. So then I completed a 1 year foundation program with them, and then I took my Kriya Diksha, and since then I have not looked back. Whatever things that were holding me back were all kind of started leaving me, correct? And new habits came in, and that's the journey. And whatever has happened after that, you all have known me for like last 1.5 years, and my practice is going on. I have done my yoga TTC certification. I do meditation. I teach people. I guide people, and then I have not looked back. And now this jungle experience with Mr. Srinivas has been amazing. Yeah. So so basically सर जो बुशलैंडर ट्राइब में म- मेरा जो लर्निंग रहा है, हाँ, द फर्स्ट लर्निंग वाज आई जस्ट गो ब्लैंक इनटू द फॉरेस्ट. करेक्ट. यानी जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स के पास जाता है, तो वैसे ही सेम माइंडसेट में आई एंटर्ड इनटू द फॉरेस्ट. करेक्ट. तो मैं एक्चुअली आपको पूछने वाला था कि ये जो आपका बुशलैंडर का ट्राइब या ये जंगल में जाने का आपका एक्सपीरियंस क्या था, और आपको वो प्रेरणा कहाँ से मिली? तो सर सिंस माय चाइल्डहुड आई एम लिविंग अराउंड द फॉरेस्ट, अच्छा. एंड आई हैव ए एडवेंचर काइंड ऑफ माइंडसेट. तो हम्म. मैं फॉरेस्ट तो एक्सप्लोर कर रहा था, हाँ, हाँ. बट इट वाज इन द मंथ ऑफ नवंबर 2024 अच्छा. when I first consciously started to venturing into the forest, so that I should connect with the spirits. अच्छा. In one of the podcasts, I have learned that the whole forest Huh. is controlled by spirits. Oh. Wild animals, waterfalls, rivers, vegetation, all the flora and fauna are controlled by the 5 elements itself. Absolutely. And these 5 elements are nothing but the manifestation of Parashakti, Adishakti, Correct. Devi Durga. Correct. So I just entered the forest and prayed, Hmm. please allow me to venture into the forest and bless me. Within 10 minutes, I first encountered with a wild bear. अच्छा. Mother bear with a cub. हाँ. She is a very dangerous predator. अच्छा. In अगर normal case में she will kill you to protect his child. Absolutely. But that day they blessed me. Wonderful. And that experience made मेरे अंदर इतना ज़्यादा confidence आया. Confidence in the sense I experience certain spiritual experience. The Correct. way we both look each other for almost 10 seconds. Oh. I understand that this bear is also a divine spirit Correct. in animal form, Correct. Correct. and he is blessing me. Absolutely. You are welcome to the forest. Wonderful. And that was the initiation. Great. And after that, I started venturing into the forest Okay. and spending lot of hours in the forest, Mm. maybe 2 hours, 3 hours, Mm-hmm. and practicing my meditation, whatever I learned from all those gurus. Mm-hmm. And certainly a blue light has been started appearing in my Yeah, photographs. in fact, Srinivasji, I wanted to ask you the next question is that Yeah. only. So can you just give us a little more brief and for the audience that, what is this blue flame, Yeah. and why does it appear, and for whom does it appear? So, sir, already know the last Gurukulam which we both are registered. Hmm. In that Gurukulam, our Guru has to told us about the blue flame, हाँ. the sacred dhuni of Mahavatar Baba. हाँ जी. So, जब मैं forest में गया, lots of all my photos has appearing a blue lights. Okay, it's like an aura. Yeah. Okay. First I thought it may be the lens and the sunlight flares is in appearing, but it was continuously appearing. Correct. And every day the geometry started changing. Oh, And Okay. one day it appears in a video. wonderful. So I asked my Guru, Hmm. Guruji, please Hmm. explain me what is this. Hmm. But उन्होंने भी पहली बार देखा होगा, so he can't understand. Correct. Then I meditated Okay. and I asked one Kalyani Durga, can mother please explain me? Mm-hmm. So later I realized that this light is of Mahavatar Babaji energy. And again I meditated. Then I realized that Mahavatar Babaji is nothing but the manifestation of Bhagwan Kartikeya himself. Oh, Yes. okay, okay. तो भगवान कार्तिकेय ने महावतार बाबा जी के रूप में अवतार लिया अच्छा. और वही धर्म को रीइंस्टॉल कर रहे हैं कलयुग में. हाँ. महावतार उनका, मेरे हिसाब से उनका नाम महावतार इसलिए पड़ा कि जितने भी अवतार हैं, हाँ. डिवाइन बींग्स उन हैं, सबसे बड़े उन सबके गुरु वो. गुरु हैं. एंड कार्तिकेय के बारे में हम ये जानते हैं कि ही इज द लॉर्ड ऑफ धर्मा अच्छा. एंड द वॉरियर लॉर्ड. हाँ जी. तो वो धर्मा को रीइंस्टॉल कर रहे हैं. हाँ, हाँ. तो सेम इस कलयुग में महावतार बाबा जी भी धर्मा को फिर से रीइंस्टॉल कर रहे हैं. अच्छा. हर 100 ईयर्स में कोई ना कोई एक डिवाइन बीइंग गुरु के रूप में जन्म ले रहे हैं, लेकिन उनका लिंकेज हमेशा महावतार बाबा जी से. तो मुझे ये पूछना था कि जो ये आपको ज्योमेट्री बनती है, जो जी. सन से जो जी. रिफ्लेक्शन बन के आप जो ब्लू लाइट बोलते हैं, जी. वो पैटर्न सबके लिए सेम रहता है या अलग अलग रहता है? नो, पहले तो मुझे लगा कि अब वो महावतार बाबा जी का लाइट है तो सबके लिए सेम होगा, अच्छा. लेकिन लेटर आई रियलाइज दैट इट इज आवर ओन शिव मूर्ति. ओ,
तो सोमूर्ति How- का तो हमको हमारा ओन रिफ्लेक्शन है. तो हमको जो सोमूर्ति के बारे में बताया गया था वो जी. कुछ अलग ही था, बट Yeah. दिस इज व्हाट द सोमूर्ति इज Yeah. एक्चुअली. The ओके. nature is showing you your own energy. हाँ, ओके, इट्स अ रिफ्लेक्शन. Yeah. अच्छा, But अच्छा. वो उसको मैनिफेस्ट करने के पीछे किसका ब्लेसिंग है? बाबा जी का. बाबा जी का है. बाबा जी इज अलाउइंग द यूनिवर्स एंड बाबा जी इज अलाउइंग यू टू सी योर ओन रिफ्लेक्शन. अच्छा, अच्छा. सो दैट So- इज आवर ऑरा तो बेसिकली. ये जो मेडिटेशन जो मैंने प्रिपेयर किया है पंचभूतों की मदद से किया हाँ है. जी. तो सन लाइट में ही हाँ. वो रिफ्लेक्ट हो रहा है हम्म, क्योंकि हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं कि हम सेक्रेट लाइट को देख सके हम्म, नेकेड आई से. तो मे बी बाबा जी इज अलाउइंग कि कैमरा में वो कम से कम कैप्चर कैप्चर हो. हो जाए. पीपल को डाउट्स है, मेरे को भी डाउट्स था. आई हैव डाउटेड फॉर 3 to 4 मंथ. हम्म. लेटर आई रियलाइज इट इज कोई ये नॉर्मल चीज नहीं है. करेक्ट. तो मुझे लगता है कि जब आप जैसे ये जो हमने जो ये आपने जो एक कोर्स किया है जी. और आपने भी मुझे जो उसकी दीक्षा दी हुई है, जी. जैसे बाबा जी का गुरु मंत्र है, कार्तिकेय का गुरु जी. मंत्र है, तो ये जो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये आप इनिशिएट करते हो लोगों को जी. तभी ये दिखता है. यस. जो नॉर्मल लोग जो इनिशिएशन नहीं हुआ है ना उनको- इस बात में, Yeah. उनको वो नहीं दिखेगा. यस तो- सर, जो लोग मेरे से कनेक्टेड है हाँ. एनर्जेटिकली, हाँ. और मैंने देखा है कि उनको सेम डे अपीयर होना स्टार्ट हो गया. तो जब दीक्षा मिलती है जी. तभी इसका बेनिफिट्स मिलने लग जाता Yes. है ना. तो जियोमेट्री तो इंग्लिश वर्ड है. हम्म. अगर उसको सनातन धर्म के हिसाब से बोले तो हाँ, इट इज ए मैनिफेस्टेशन यंत्र. अच्छा. इट इज ए यंत्र हाँ जी. एंड यूनिवर्स इज गिविंग यू योर ओन यंत्र. हाँ. आपका ऑरा, आपका एनर्जी बॉडी ही यंत्र है. हाँ जी. तो जितना ज्यादा आपका एनर्जी बॉडी प्योर होगा, हाँ, हाँ. स्ट्रांग होगा, हम्म. उतना पावरफुल क्या होगा आपका जियोमेट्री, वो यंत्र होगा. हाँ. उसकी मदद से आप अपने लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, नॉलेज, हम्म. जैसे हम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सब manifest उसको कर सकते उसका डायमेंशन और एक्सपेंड कर सकते हाँ हैं. हाँ हाँ. यानी बोलते हैं ना 7 प्लेन्स ऑफ माइंड है. करेक्ट. तो अब चक्र उसको आप 7 प्लेस ऑफ चक्र. हाँ. तो उसके साथ अभी जिस हिसाब से करंटली मुझे फील होता है कि आई वाज एक्सपीरियंसिंग मणिपुर. हाँ. सो माय ऑरा हैज बीन बिल्ड अप टिल मणिपुर. हम्म. तो आई हैव टू वर्क ऑन माय अनाहता चक्र. अच्छा. तो इट विल एक्सपैंड. समझ गया समझ गया. सो उसमें वो जो लोटस दिखता है हाँ. वो 10 पेटल है. तो 10 पेटल ऑलमोस्ट मणिपुर. मणिपुरा रहता है. और उसके बीच से जो आ रहा है ब्लू जो है वो मुझे लगता है शिव शक्ति का यूनियन है. हाँ. एंड द लाइट विच पियर्स इट इज अ वेल ऑफ मुर्गन. मुर्गन. इट इज अ स्पीयर ऑफ मुर्गन. तो कहने का मतलब ये है कि आप एक सिंपल नॉर्मल से ह्यूमन बीइंग है जिसको कोई नॉलेज नहीं है. हम्म. अगर वो नेचर से कनेक्ट करेगा हाँ. सीरियसली, हाँ, इंटेंशनली, हाँ हाँ. नेचर उसके लिए कितने सारे पोर्टल ओपन कर सकता है. Correct. तो जो ये ट्रेडिशनल योगा स्कूल्स हैं जहाँ फीस दो, रजिस्टर्ड दो, 5 साल 6 साल, मैं सोचता हूँ कि इसको आप ब्रेक कर सकते हैं. करेक्ट. आपके ऊपर है करेक्ट. क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपके अंदर ही है. जरूर. आपके पूरे आंसर्स, क्वेश्चन हम्म, सब आप ही के अंदर है. हम्म. अगर उसको मिरर करना है तो नेचर इज द बेस्ट मिरर. और Correct. नेचर रिप्रेजेंट करता है फॉरेस्ट. बढ़िया. बहुत बहुत बढ़िया. फॉरेस्ट आप जाने के लिए आपको पैसे नहीं लगेंगे. इट इज फ्री. इट्स फ्री. आप जब चाहें तब फॉरेस्ट जा सकते हैं. Correct. बस फॉरेस्ट को आप सोचो कि ये टेम्पल की तरह. जरूर. तो टेम्पल का जो मर्यादा है हाँ हाँ. सेम मर्यादा फॉरेस्ट में भी आके फॉलो करो ना. Correct. आप बेयर फुट इंटेंशनली वॉक करो तो इट इज आप क्या है मदर के वूम को टच कर रहे हो. हम्म. ब्रीथ जब कर रहे हो तो हम्म. यू शुड थैंक्स वायु देवता. हम्म. जब ट्री के अंदर है तो ट्रीज को आप मानो कि ये जैसे हम घर में हैं यहाँ पे फॉरेस्ट में ट्रीज आपका. तो ऐसे आप हर एलिमेंट्स को अगर आप बोलोगे कि ये देवी ही अगर मेरे एलिमेंट्स है तो फिर तो देवी के लिए आपको सेक्रेट होना पड़ेगा. करेक्ट. सही और बात है. फॉरेस्ट में का मर्यादा ये है कि वहाँ लाउड आपको बात नहीं करना है, लाउड साउंड नहीं करना है. और वहाँ का जो वेजिटेशन और एनिमल्स हैं उनको बिल्कुल आप डिस्टर्ब मत कीजिए. हाँ. So you have to be basically तो having the देन ground ओनली rules. यू विल बी एक्सेप्टेड बाय द फॉरेस्ट. Correct. और सबसे बड़ा चीज ये है सर, फॉरेस्ट आपको आपके जो शॉर्ट कमिंग्स है हम्म. माइंड्स के हम्म. उसको ओवरकम करने के लिए भी शक्ति देगा. हम्म. मोस्टली फियर, हम्म. इमोशन, हम्म. ये ऑल सब माइंड में है. हम्म. क्योंकि हमारा जो स्कूल का एजुकेशन है, सोसाइटी का जो अपब्रिंगिंग है वो हमको वैसा कोड कर दिया. हम्म. ये इमोशन, फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, कंपटीशन, एवरी गिल्ट, शेम, एवरीथिंग हैज बीन स्टोर्ड, कोडेड इन आवर DNA. कैसे बोल सकते हैं आपने Our system. energy system. हाँ. So we need to break free basically. तो इससे अगर इस मैट्रिक्स से बाहर आना है तो फॉरेस्ट इज द फर्स्ट पोर्टल. बिकॉज मैं भी यही सोचता हूँ कि जो जंगल है या जी. ये फॉरेस्ट है, हाँ. दिस इज नेचर Yeah. एंड दिस इज हु वी आर एक्चुअली. People, as you said, who are living in the concrete jungle in the cities, Yeah. have forgotten their original nature, They are disconnected Correct. with the mother. Mother Earth. So they have basically forgotten Yeah. that who they are, Yeah. and they have lost that identity, Yes. and they are only running after competition and try to be better than their neighbor, Because or they have better than their been own coded colleagues. in that manner. So they think building a home
having properties, and making having money, bank balance. having bank balance, real getting estate. married, Yeah. getting children, getting into stress, इसको living for wealth, the weekend. इसको So wealth बोलते हैं. हाँ, so they think that is wealth for them, But but that is not wealth. wealth is मेरे हिसाब से wealth क्या है सर? Physical well-being, Hmm. emotional well-being, Peace and of mind. mental well-being. Absolutely. अगर ये है, हाँ. वो नहीं भी रहेगा तो चलेगा. चलेगा. उसको तो आप कभी भी मैनिफेस्ट कर सकते In हैं. fact, अभी ये जो 4 दिन मैं यहाँ पे आपके साथ इस जंगल में रहा हूँ, जी. I feel I have forgotten that I used to live in a city, frankly speaking, Yes. and I feel I belong here. Yeah. And अगर देवी की इच्छा हो तो मैं ऐसे जंगल लाइफ को प्रमोट भी करूँगा Yes. आगे, and I will definitely take this this solution. This is actually a solution for people. सर Solution एक्चुअली to corporates एक्चुअली who मैं are खुद suffering. कॉर्पोरेट में था मुंबई में हम्म. फॉर द पीरियड ऑफ 4 years. हम्म. आई एम ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. हाँ जी. सो आई वाज लिविंग इन मुंबई एंड आई वाज एंजॉयिंग माय लाइफ. हम्म. बट कुछ समय के लिए कुछ लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए, आई हैव टू कम टू माय होम टाउन छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट है. Correct. दैट टाइम जो मेरे को कनेक्शन मिला फॉरेस्ट से, दैट मेड मी टू, मैंने फिर अपने जितने भी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी है मैंने सबको छोड़ दिया. मैंने फॉरेस्ट के आसपास ही यहाँ पे जॉब माइनिंग इंडस्ट्री में जॉब किया, और उसको ज्वाइन करने का रीजन भी कहते हैं दैट इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. So just to add to what you said now, Srinivas ji, I feel the people who are living in the city, Yeah. who are living in a corporate life, who are getting stressed out, they are earning a lot of money, but they are living for the weekend. Yeah. And mostly what they are doing is, the only way they are trying to de-stress themselves is either by taking a weekend holiday, Yeah. or by getting addicted to alcohol, Yeah. or maybe cigarettes, Substance abuse. Yeah. and that is a temporary relief. So I feel there has to be a change, Yeah. and this particular concept of living in the nature Yeah. has to be taken to these corporates. This is my complete, and this is what I feel is what is needed today. So people are going for temporary reliefs, and by getting into substance abuse, and I think if people, even on a weekend, whenever they get time, they spend a little time in the nature, whichever is available near them, maybe a park, maybe maybe Garden. an escape for like 1 hour from that city, हाँ. wherever it is available. और उनके घर में भी अगर छोटा सा छोटा लॉन है, lawn है, तो they can उससे spend in nature. from there only they can start. Absolutely. So I think this is what we need to promote in corporates, and we need to make people aware Yes. that this is the way of living which will de-stress them Yeah. and help them live a better life. Yeah. So I think this is what we And need they to will do. live long. Absolutely. Yeah. Absolutely. And And fulfilled life. हाँ, And a purposeful life. purposeful. Absolutely. Absolutely. सर फॉरेस्ट को अगर हम बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट कैसे बेनिफिट करेगा, Mhm. तब हिस्ट्री में जाएंगे मैनकाइंड के, Mhm. तो स्पेशली मैं अपने सब कॉन्टिनेंट की बात कर हाँ रहा जी. हूँ, तो आवर ओल्ड गुरुकुलम सिस्टम Uh-huh. ऑल आर बेस्ड इन डिफॉरेस्ट. Correct. इवन व्हेन यू सी महाभारत हाँ. एंड रामायण, हाँ. वनवास के हाँ. टाइम भी जो गॉड्स थे, Uh-huh. दे चूज फॉरेस्ट ओनली. Correct. So, in fact, through this particular podcast, I would like to reach out to people who have a similar mindset that we have, and if anybody wants to collaborate with us and to Yeah, take yeah. this particular mission, or you can say this particular thought of us to start this kind of living of Gurukulam style. If anybody wants to collaborate with us, if somebody wants to be a part of this, you can please reach out to Srinivas ji, or you can reach out to me. And I think there is so much of scope that we together can take this particular thing forward. हाँ, What do you सर think? जैसे फोन को आप चार्ज करते हो ना, हाँ जी. दिन में कितने हाँ बार जी. करते हाँ जी. हो, हमने 2-3 बार कर देते हैं. तो वैसे ही बॉडी को चार्ज करने के लिए जरूर. आप हाफ एन आवर स्टार्ट कीजिए. हम्म, ओनली हम्म, हाफ एन हम्म, आवर. मैं ये नहीं बोलूँ कि आपको पूरा दिन देना. हम्म. हाफ एन आवर, आप 24 आवर्स में हाफ एन आवर निकालोगे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं. जरूर. एंड स्टार्ट कनेक्टिंग विद द नेचर Nature. based on the method we will tell them, and we Absolutely. will share them We'll teach them. separate different modes, steps, Correct. how you connect with those subtle energies. Correct. Correct. And those subtle energy will open lots of portals, Absolutely. lots of gateways. No, in fact, I myself have experienced this in the last 3 days. And when you you will initiated get me to the lots of jungle living. thoughts, downloads, and even dream. Absolutely. तो इससे आपका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल वेलबींग है, Mm-hmm. आपका तो अच्छा होगा, हम्म. आपके फैमिली में चेंजेस आएंगे हाँ जी. आपके ऑरा से, Uh-huh. आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट चेंज होगा, Correct. पीपल विल सी डिफरेंटली टू यू. Absolutely. Yeah. Absolutely. Yeah. Now Absolutely. people look see me as a yogi. Absolutely. They treat me like a yogi. Correct. They respect me like a yogi. Correct. Correct. 1 year back पूरा perception change हो गया. Correct. सबको मेरे को. Correct. I even underwent a kidney transplant surgery Mm-hmm. almost 3 years back. Mm-hmm. And now look, I am here sitting here Correct. and talking all this. Absolutely. Absolutely. This is wonderful. This is I think what we need to encourage the masses Yeah. to take up this lifestyle, and we are here to teach this particular way of life. And this has been formed and created by Srinivas ji. He I is am the not founder. created anything. No, I'm just telling you. You're the one who initiated this thing, and this is I am just a vehicle. correct. Sir, So, but it through has come which- through you, हाँ, right? हाँ, हाँ. So I'm saying you sat
in the jungle, you meditated, Yeah. so that download came to you. Yes. Then you created this course, Yeah. which you have fortunately, I have been able to learn this firsthand from you in your presence. So I think that has made a lot of difference in me, and I think this benefit has to reach to people. वी डोंट हैव टू पे वेरी ह्यूज अमाउंट सर वी और इससे आपका ना लाइफस्टाइल में इतना ज़्यादा चेंजेस आएंगे हम्म। कि जो हमारे अभी जो लाइबिलिटीज़ हैं इतने ज़्यादा वो भी धीरे धीरे कंट्रोल होंगे यानी आपके इमोशन इतने ज़्यादा कंट्रोल होंगे कि आपके एडिक्शन फ्री हो जाओगे Correct. You will have a हाँ। purpose in life. या पर्पस रहेगा पीस रहोगे पीसफुल हाँ, रहोगे हाँ, हाँ। एंड यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस डिवाइन थ्रू आउट 24/7 डिवाइन आपके साथ रहेगा आप मुझे आप बोल रहे थे ना कि you wanted to tell me about that cosmic thing or something, some light something. यस सर What was that? द ब्लू फ्लेम लाइट नहीं, उसके बाद कुछ तो बोलने वाले थे ना आप. हाँ geometry. जियोमेट्री तो जियोमेट्री तो इंग्लिश वर्ड है हम्म. तो जियोमेट्री में हम देखते हैं ना सर बहुत सारा ड्राइंग पैटर्न होता है हाँ, ट्रायंगल होता है हाँ, रेक्टेंगल हाँ, होता है तो अगर हम उसको अपने सनातन धर्म में जाएंगे हम्म. तो व्हेन यू डू देवी पूजा हाँ. सर्टन वामाचार टाइप ऑफ टेक्निक वी पीपल यूज लॉट ऑफ यंत्रस हम्म. लाइक देयर इज अ श्री यंत्र जी. जो लक्ष्मी का यंत्र है जी. वेल्थ मैनिफेस्ट जी. करने के लिए तो ये जो लाइट है ये भी यंत्र ही है अच्छा. तो कल जब आपका 2 डेज पहले हम कैप्चर किए हाँ. फॉर द फर्स्ट टाइम हाँ जी. आपका जियोमेट्री मेरा जियोमेट्री पैटर्न एकदम डिफरेंट है हाँ. एंड आपको वो चीज रियलाइज नहीं था बरोबर. so when you entered into the forest already show you Correct. that you already have those geometry Correct. जो आप आपको फॉरेस्ट में एसेस कर क्योंकि मैंने जब ये ब्लू लाइट आपने जब बताया था तो हाँ. मैं अपने घर के पास पार्क में जाके इसको मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता था कैमरा से. Yeah. बट उसका पैटर्न Yeah. और ये जंगल के अंदर जो पैटर्न लिया ना Yeah. उसमें जमीन आसमान का फर्क है. तो एनी जंगल वो एक एनर्जी सेंटर है हाँ जी. जहाँ वो पोर्ट जो जियोमेट्री है वो अपियर होता है ह्यूज हम्म. वो ओरिजिनल फॉर्म में दिखता है हम्म. मे बी इट विल नॉट अपियर इन द सिटीज बिकॉज Correct. सिटीज डोंट हैव दैट डिवाइन एनर्जी लाइक फॉरेस्ट Absolutely. Yeah. Absolutely. देवी इज लिविंग इन द फॉरेस्ट Correct. so देवी इज ब्लेसिंग यू लुक दिस इज आई एम देवी ने मिरर होल्ड किया आपको मिरर दिख रहा है सिटीज में कौन मिरर करेगा Correct. सबके सब तो वहाँ स्ट्रेस आउट है Correct. तो अभी वो पोर्टल देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आया बहुत कॉन्फिडेंस है. हाँ तो नाउ यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ Absolutely. है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचो कि मैं स्टिल रहूँ हम्म. सो दैट मेरे को डाउनलोड्स आए थॉट्स आए हम्म. और उसको जर्नलिंग करना स्टार्ट कीजिए जरूर. तो यू विल अंडरस्टैंड तो न्यूमरोलॉजी भी जो बोलते हैं ना हम्म. मेरे को लगता है इसी बेस पे न्यूमरोलॉजी का भी स्टार्टिंग यंत्र थी यंत्र जी. एंड लुक और ट्री आपको देखो Accept कर रही है. एक्सेप्ट कर हम रहा जो नहीं बात कर रहे हैं. एक्सेप्ट नहीं कर रहे हवा भी आया ना. दे आर there's a नॉट cool breeze. एक्सपेक्टिंग दे आर कंफर्मिंग The cool breeze आया ना. They accepted it. Yeah. Means they're accepting what we are saying. Yeah. Absolutely. सो Absolutely. अभी आप और मैं जिस अभी फॉर्म में है हमको और एक्सप्लोर करना है क्योंकि जरूर, ये जरूर. हमारे लिए स्टार्टिंग ही है Absolutely. वी हैव टू Absolutely. एंड वी Absolutely. कैन ऑफर दिस थिंग टू पीपल आल्सो We are. तो मैं इसको वन विद्या बोलता हूँ Absolutely. डिवाइन नॉलेज We ऑफ can in fact forest. name the course as One Vidya only. Yeah. See, नाम भी आ गया. द डिवाइन नॉलेज ऑफ द फॉरेस्ट One Vidya. And और you ये can put a एंशिएंट tagline. नॉलेज है सर क्योंकि आप अगर ह्यूमन इवोल्यूशन भी देखेंगे Mhm. तो जो हमारे एंसेस्टर्स से सब क्या थे हंटर एंड गैदरर थे Correct. दे लिव इनटू फॉरेस्ट Correct. ये तो सोसाइटी का कंसेप्ट अभी 100 या 200 इयर्स बैक ही आया है So this has to slowly change. चेंज Absolutely. अब इसी के कारण कितने सारे क्रॉनिक इलनेस मैनिफेस्ट हो रहे हैं जो पहले थे ही नहीं और नेचर में आओगे तो वो हील हो जाएंगे. या बीपी शुगर तो आपका गायब हो जाएगा Absolutely. Yeah. Absolutely. Absolutely. सो बेसिकली देयर आर 5 मेथड्स थ्रू विच यू कैन कनेक्ट विद द नेचर हाँ जी. जो प्रिलिमिनरी है Mhm. सबसे पहले आप बेयर फुट वॉक करना स्टार्ट कीजिए जरूर. यू शुड एक्सपोज योर सेल्फ टू मॉर्निंग सनलाइट Yeah, correct. फॉर 1 आवर Hmm. एंड यू शुड ईट फूड एंड वाटर Hmm. जब ले तो उसको भी इंटेंशनली ले Hmm. क्योंकि वो नरिश करेगा Hmm. तो जब वाटर को ले तो वाटर को प्रे करके ले। Consciously. हाँ यानी सनलाइट उसमें एक्सपोज हो जाए फिर इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया सूर्य ने आशीर्वाद दिया वैसे फूड और वाटर को भी लेंगे तो वो नरिश ही करेगा एंड अवॉइड आर्टिफिशियल लाइट्स Correct. है ना जल्दी सो जाएगी And junk food, processed हाँ, food, processed packed food. food. ये हाँ. सब बंद करना है. वो धीरे धीरे होगा इमीडिएट तो होगा नहीं बट अगर आप कनेक्ट होंगे तो आपका बॉडी आप Automatic खुद ही reject अवॉइड कर देंगे. Reject कर यू देंगे. विल अवॉइड ईटिंग ऑल द जंक फूड फ्रेश फूड खाइए फ्रिज को यूज मत कीजिए Correct. कोल्ड फूड तो धीरे धीरे फिर जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे हम्म. तो डिवाइन विल ओनली टीच यू उस समय Correct. आपका एक्सपीरियंस आपके कर्मास पे डिपेंड करेगा Hmm. डिपेंडिंग ऑन दोस थिंग द 5 एलिमेंट्स विल गिव ऑल द नॉलेज अगर किसी के कर्मा ऑलरेडी बर्न है Hmm. सपोज हमने अपने पर वर्क कर लिया Hmm. तो शायद हो सकता है हमको ज़्यादा एडवांस लेवल का नॉलेज मिल जाए मिल जाएगा. हाँ और जो बेचारा अभी स्टार्ट कर रहा है हम्म. हो सकता है देवी उसको टेस्ट करे हम्म. कि ये प्रॉपर अधिकारी है कि नहीं फॉर दिस नॉलेज Hmm. तो Correct. उसको साधना तो करना है क्योंकि साधना के पद पे ही चल के आप योग मार्ग में जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए. यस
एक पर्टिकुलर टाइम में डिसिप्लिन आपको और मेंटेन कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि हम लोग ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा। नहीं वो वो तो लोगों सर को वही होता है ना कि मुझे इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट तो मिलेगा नहीं सर। देखिए नहीं मैं क्या बोल रहा हाँ हूँ, नहीं मेरा हाँ मैंने कहने का हाँ मतलब क्या है कि लोगों का अभी क्या हो गया, प्रिजम्पशन लेके मत चलो। नहीं माइंडसेट क्या हो गया, मैं हाँ बोल रहा हूँ कि सी अ पर्सन विल नॉट कम टू अ पर्टिकुलर पाथ और एनीथिंग एक्सेप्ट ही थिंक्स दैट दिस हैज टू बेनिफिट मी इन सर्टेन तो वे। यही सो सर ये छोड़ के आना है बोल तो रहा हूँ मैं। ये क्या है मॉडर्न साइंस कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या कंज्यूमर बेस्ड हो गया। करेक्ट, सो मैं वही बोल लेकिन रहा ये हूँ, वैदिक नॉलेज इज नॉट नॉट दैट। कंज्यूमर सो बेस्ड। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट दिस वन विद्या जो है, ये अगर आपको सीखना है तो तो यू नीड टू लीव ऑल द आइडेंटिटीज एंड कम you have to earn it. अर्न इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। You have to become adhikari. यस, First you become adhikari, then they will give you. करेक्ट, एंड यू शुड नॉट कम विद एनी एक्सपेक्टेशन हाँ दैट ये मैं करूंगा तो मेरे लाइफ में ये होगा। नहीं होगा। नहीं ये नहीं करना चाहिए। हाँ वैसा होगा ही भी नहीं। करेक्ट, आप चाहोगे भी तो होगा एग्जैक्टली नहीं। एग्जैक्टली, सो ये आप ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट हाँ है। आप अगर सोचोगे कि मैं ये फॉरेस्ट बेस्ड थेरेपी करके मेरे को मेरे लाइफ में ये आएगा, हाँ, इतना पैसा आएगा, इतना इट ये विल आएगा, नॉट वो आएगा, कम। नहीं होगा। देवी जो आपको चाहिए, देवी वही चीज आपको देगी। नहीं तो आपको भगा देगी। हाँ तो बेसिकली यही सब चीजें मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया। मे बी आपने भी यही सिमिलर हाँ हाँ, एक्सपीरियंस किया। एब्सोल्युटली। सो And I think I'm going back a new person Yeah. with Lots of energies new learnings, Yeah. lot of energies, and I think it's very important for me to conserve these energies now and and not more to waste it, confidence and more confidence. And in I'm in our absolute in our own self. Absolute. वो पहले नहीं था नहीं था। क्योंकि डाउट से Doubts. मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। डाउट इसलिए रहता है कि सर हम ना एक्सेप्ट करते हैं कि कोई आके कंफर्मेशन दे, थर्ड पार्टी वैलिडेशन होगा तब भी। वही तो सोसाइटी हाँ, खराब हो रही है हाँ, ना। तो ये People यहाँ are पे looking for validations. ये हियर यू डोंट नीड थर्ड पार्टी वैलिडेशन, यू जस्ट गो टू द फॉरेस्ट, दे विल Validate yourself. हाँ दे विल, ही इज वैलिडेटिंग राइट नाउ। सो व्यूअर्स, दिस इज मिस्टर अमित शानबाग, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमको शेयर किया। So in coming times we will do lots of podcasts based on our experience and our learning. So अभी के लिए नमस्कारम, नमस्कारम, जय भवानी। जय भवानी।